English for become BA BSc fourth semester. So this is your model paper. In the last 10th question, you have part A and part B. No, in part A you have to write any 4 questions. Out of 6, any 4 will be there. In part B, 7th, 8th, 9th, this will be the theory. Either you attempt 3 poems, 3 prose, or any 2 prose or 1 poem, like that you have to choose there. 7, 8, 9th question. In the 10th question, you have additional reading in your syllabus. Additional reading, 3 topics are there. So any 2 topic you have to prepare for the 10th question. It's clear? 3, if you learn prose and poetry, you are able to attempt only 7th, 8th, 9th. Either 3 poems or prose. Choice will be there. First unit poem or prose. Second unit you have prose and poetry. Choice will be in the 8th question. In the 9th question, third unit you prose and poetry, like that. But in the 10th question you won't get prose and poetry. Additional unit is then given, no, for you. Additional readings is given to you in the syllabus, no. From that you have to attempt any one question. So today I am discussing that. It is important. 15 marks you will get from that today's video if you watch it. So I am explaining all the 3. You, whichever you are finding easy, you prepare for the 2. That is sufficient, because any 2 will come into the exam. From there you have to choose any one. It's clear, no? So let's start. See here in the syllabus, this is the additional reading given, no? In unit 4 additional reading, consumer often can't detect fake reviews and underestimate how many negative reviews might be fakes. This is Shabnam Azimi. What are the views you are getting according to Shabnam Azimi? Consumers often care. Yeah, like that you may get the question. That is from additional reading topic. You will get it. In the unit 5th, you have additional reading. Is it okay to kick a robot dog by Robert Sparrow? This is the additional reading. This is given in the unit 5th. And in the unit 6, it has given why we love holidays, rituals and traditions. This is written by Dimitris Zygalets. It's clear, no? So out of these 3, any 2 you have to prepare. I am going to explain all the 3. Whichever you are finding easy, any 2 you have to prepare for the exam, so that you can write one in the well-being, and that is directly 15 marks you will get from it. So let's move to it. Now it is on page number 28. This is the new series only. I am explaining revised edition of 2025 only. Most of the students are saying the syllabus has changed. Syllabus last year syllabus only will be there. Previous your senior wrote this syllabus already. You are the second batch for this, I think so. But whatever it may be, I am explaining from the revised edition of 2025 only. It's clear? So you can trust on my videos. You can prepare from it. You will pass into the exam. So let's move to the topic. Consumers often can't detect fake review and underestimate how many negative reviews might be fakes. So this is about the author Shabnam Azimi, profession researcher and writer. फील्ड एक्सपर्टाइज कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का फील्ड है इनका. एंड फोकस एरिया अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड ऑनलाइन रिव्यूज. ठीक है, इनका जो मेन फोकस एरिया रहता है, इनका प्रोफेशन क्या है, रिसर्चर है, नो, राइटर है. एंड कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, तो ऑनलाइन रिव्यूज क्या रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड द ऑनलाइन रिव्यूज, हाउ पर्सनैलिटी ट्रेड्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर ट्रस्ट. कैसा जो है सो यहाँ पर कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन होता, मिस इन्फॉर्मेशन, ट्रस्ट वर्थीनेस इन डिजिटल प्लेटफॉर्म. नाउ नेक्स्ट वी हैव की कॉन्ट्रीब्यूशंस. what she has given key contributions: research on how consumer perceive and trust online reviews, and insight into a role of personality types like openness and extroversion in detecting fake reviews. So what she wants to suggest to us in the poem, in the this concept, that openness and extroversion, this is the word you have to you have to write into the exam in detecting fake reviews. Key themes of the work: the interplay between psychology and technology. ठीक है, इंसान की जो सोच है साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बारे में वो थीम है इनका वर्क का. आइडेंटिफाइंग डिसेप्शन एंड इम्प्रूविंग कंज्यूमर अवेयरनेस. मेन एम क्या है इनका, कंज्यूमर अवेयरनेस करना है. एथिकल कंसिडरेशन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म.
ऑब्जेक्टिव टू एजुकेट कंज्यूमर ऑन बीइंग क्रिटिकल ऑनलाइन रिव्यूज एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, यहाँ पर अपने को जब अपन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके बारे में ये पूरा आपको लिखने का है। ठीक है, जनरली कंज्यूमर्स ऑफन कांट डिटेक्ट फेक। अब आप जब भी ओपन करें, कुछ ऑर्डर करना है आपको, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो, कौन से भी ऐप से अगर आप ऑर्डर करना चाह रहे हैं, सो जो भी प्रोडक्ट आप चूज करते हैं, आपका पहला काम क्या रहता है? रिव्यूज देखना। ठीक है, इमेजिन कर लो आप एक फोन खोलो, आपको वहां पर रिव्यूज दिखते हैं। ठीक है, तो वो रिव्यूज में जो है सो आपको नेगेटिव कमेंट्स भी रहते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड एंड पॉजिटिव कमेंट्स भी रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर अपने को ये कौन सा इसमें बताया गया है, ये इसमें एडिशनल रीडिंग में यही बता रहे हैं उन्होंने कि जनरली जो टॉपिक चल रहा ना, ये अपने को एडिशनल रीडिंग में पढ़ने का है। ठीक है, लेसन्स जो रहते हैं अपने को प्रोज, पोएट्री, वो ऑथर्स का जो है सो इमेजिनेशन रहता, ठीक है, वो इल्यूजन रहता वो। लेकिन ये क्या है, एडिशनल रीडिंग में क्या है मालूम है आपको, जो रियली जो चल रहा, ठीक है, जो अपन प्रेजेंटली एज ए कंज्यूमर जो अपन कर रहे हैं उसके ऊपर जो है सो ये डिपेंड है। ठीक है, इफ़ यू आस्क योर मदर टू ऑर्डर समथिंग, शी वोंट बिलीव। ठीक है, अगर रिव्यूज को देखे हो, एक दो रिव्यूज फेक पढ़ लिए, नो ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है बोल के इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हो ना कि अपन जाके कहीं भी ऑफलाइन ही ले लेंगे सेम प्रोडक्ट बोल के। ठीक है, जैसा फेक रिव्यूज को देखते ही अपना माइंड जो अपन चेंज कर दे रहे, यहाँ पर वही बताना चाह रहे हैं कि कस्टमर्स ऐसे नहीं रहना, कंज्यूमर्स एज ए कंज्यूमर ऑनलाइन उसके लिए अपन ऐसे नहीं रहना, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ अपने को रिव्यूज जो रहते हैं वो फेक है। दो पॉइंट से अपने को बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव अगर है तो कोई वो गलत प्रोडक्ट भी है अगर, तो यहाँ पर जो है उनके प्रोडक्ट को सेल होने के लिए, प्रमोट करने के लिए लोग फेक पॉजिटिव रिव्यूज डालते हैं क्योंकि कस्टमर्स उसको देख के खरीदना बोल के। और अपने को नेगेटिव जो है सो नेगेटिव भी यहाँ पर रिव्यूज रहते हैं। नेगेटिव रिव्यूज कॉम्पिटिटर्स की तरफ से आते हैं, कॉम्पिटिटर्स को ये प्रोडक्ट डाउन होना बोल के जो है सो ऐसा भी हो सकता। तो यहाँ पर अपने को दोनों चीज़ें समझा है। एज कंज्यूमर यू शुड बी ओपननेस के देखेंगे अपन ये यूज करके, तो देखेंगे ऐसा ओपननेस रहना, और आप खुद अपने एक्सपीरियंस से जो है सो कौन से जो है सो पॉजिटिव है, कौन से फेक है, उन लोगों को जो है सो पहचाने का यहाँ पर अपने को बता रहे हो। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट कै के बारे में लिखना है आपको। नाउ कोर मीनिंग, शबनम अज़ीमी's रिसर्च हाईलाइट्स ए प्रेसिंग इशू इन टूडेज डिजिटल वर्ल्ड। आज का वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है? डिजिटल वर्ल्ड है ना, डिजिटल वर्ल्ड। द चैलेंज ऑफ डिस्टिंग्विशिंग रियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिसेप्शन, सही इंफॉर्मेशन से धोखे की इंफॉर्मेशन में जो ऑनलाइन में जो चल रहा अपने को, उसके बारे में यहाँ पर बताइए चैलेंजेस को। इन एन एरा वेयर डिजिटल रिव्यूज हैवीली इन्फ्लुएंस कंज्यूमर डिसीजन। डिजिटल रिव्यूज आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंज्यूमर डिसीजंस टुडे नाउ ऑनवर्ड्स। हर वर्ग शेड्स लाइट ऑन हाउ दिस रिव्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड, कैसा इसको मिस यूज कर रहे, ठीक है, रिव्यूज को, एंड हाउ कंज्यूमर्स ऑफर स्ट्रगल टू डिटेक्ट फेक वंस। उसमें से कस्टमर्स को पहचानना फेक कौन सा है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट स्ट्रगल हो गया है ये। हर स्टडी यही अपने को यहाँ पर इन्होंने स्टडी करे, रिसर्च करे यहाँ पर कंज्यूमर्स की साइकोलॉजी के बारे में एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। हर स्टडी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, एंड द रोल इट प्लेस इन डिसीजन मेकिंग, कैसा जो है सो कौन करेक्ट डिसीजन लेते, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन रिव्यूज। ऑनलाइन रिव्यूज को लेके यहाँ पर, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है, लेकिन रिव्यूज का काम क्या रहता है, रिव्यूज के बेस पे कितना सेल हो रहा, ऑर्गेनाइजेशंस का कितना सेल डिक्लाइन हो रहा, कितना इंक्रीज हो रहा, बेस्ड ऑन द रिव्यूज। ठीक है, ये टॉपिक है अपना। नो द रोल ऑफ ऑन, ये कोर मीनिंग था। ठीक है, इन्होंने क्या बोलना चाह रहे, रोल ऑफ ऑनलाइन रिव्यूज में क्या अपने को, ऑनलाइन रिव्यूज हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। रिव्यूज अगर अच्छे आ गए तो आपका सेल ऑटोमेटिक जो है सो एकदम मूव हो जाता, जंप हो जाता। इन शेपिंग हाउ पीपल चूज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स भी एज वेल एज सर्विसेज, एनी सर्विसेज यू टेक अर्बन सर्विसेज। ठीक है, nowadays they are providing every facility to the consumers, no, so products also and services also are playing a very important role in the digital marketing. So whether in decision on a hotel, अगर आपको होटल अभी बुक कराना है, so what you will see, if you want to book the hotel, you will choose the names, then you will see the reviews. Based on the reviews you will book the hotel. Restaurant, gadget, many consumers rely on reviews only to guide their choices. So reviews plays a very important role.
However, these reviews are not always trustworthy. क्या ये रिव्यूज जो भी है आपको ट्रस्टवर्दी लगते हैं? वो नहीं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता. फेक रिव्यूज भी रहते हैं यहाँ पर. बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इंक्रीजिंगली कॉमनली. पॉजिटिव भी रिव्यूज बढ़ते जा रहे, नेगेटिव रिव्यूज भी आपको बढ़ते जा रहे. पॉजिटिव फेक रिव्यूज आर ऑफन रिटर्न टू बूस्ट द प्रोडक्ट. क्या के लिए है वो पॉजिटिव? प्रोडक्ट को बूस्ट करना है बोल के, ठीक है. चाहे आपको वो सही इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन दिस इज गुड प्रोडक्ट बोल के अगर रिव्यूज डाल दिए कोई, तो वो बूस्ट कर रहे, अपील कर रहे प्रोडक्ट के लिए. वाइल नेगेटिव फेक रिव्यूज क्या के लिए थे? माइट एम टू हार्म द कॉम्पिटिटर. अगर कोई कॉम्पिटिटर है सेम प्रोडक्ट का, उसको हार्म करना बोल के नेगेटिव कमेंट्स डालते वहां पर. शबनम अजीमी's रिसर्च एक्सप्लोर हाउ कंज्यूमर्स परसीव दिस रिव्यू एंड व्हाई मेनी फेल टू आइडेंटिफाई देम एज फेक. तो इसमें अपने को शबनम अजीमी जो ऑथर है, ये समझाना चाह रहे कि क्यों लोग जो है सो इसके ऊपर इतना बिलीव कर दे रहे हैं और लोगों को क्यों ऐसा फेल हो जा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए फेक कौन सा है बोल के. ठीक है, ये क्या है? द रोल ऑफ द ऑनलाइन रिव्यूज के बारे में आपको लिखना है. पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं. पॉजिटिव प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए रहता, नेगेटिव कॉम्पिटिटर को हार्म करने के लिए रहता. उसके बारे में आपको लिखने का है, ठीक है ना. यू सी द पैराग्राफ आई एम सेइंग कोर मीनिंग. उसके अंदर अपने को क्या था? ऑनलाइन डिजिटल, उसके बारे में था. और रोल ऑफ द, उसमें अपने को 2 पॉइंट्स मेनली डिस्कस करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में, ठीक है. की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी. अब अकॉर्डिंग टू ऑथर रिसर्च करने के बाद क्या स्टडी करे, क्या फाइंडिंग्स करे उसके बारे में लिखना है अपने को. अजीमी's रिसर्च फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी ट्रेड एंड द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेक रिव्यूज. आपकी पर्सनैलिटी को बता रहे हैं यहाँ पर, कंज्यूमर्स की पर्सनैलिटी को बता रहे हैं कि कैसा वो लोग जो है एबिलिटी से अपने डिटेक्ट कर ले रहे, फेक रिव्यूज को मालूम कर ले रहे. शी आइडेंटिफाइड. हर एक कोई फेक पे यकीन नहीं कर रहे ना. मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग बाय द साइकोलॉजिकल थिंकिंग दैट these products, these reviews, whatever is given, it is fake only. Then they are ordering the product and they are getting the services and they are getting the benefit of that also. So she identified that certain personality traits such as openness enhance critical thinking. ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है यहाँ पर. ओपननेस इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग करना है आपको, ओपनली सामने आना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है. एंड मेक इंडिविजुअल्स बेटर एट स्पॉटिंग. आप खुद मालूम करना है कि फेक रिव्यूज क्या है. पीपुल स्कोर हाई इन ओपोनेंट्स आर नेचुरली क्यूरियस, एंजॉय देयर एक्सपीरियंस. अगर यहाँ पर आप पीपल हु स्कोर हाई ओपननेस, अगर आप ओपननेस होके सामने आ रहे हैं, देन एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर. एंड आर इंटेलेक्चुअली एंगेज विच हेल्प देम क्वेश्चन आर क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिव्यूज. तो वैसे जने जो क्या है ओपननेस इनहैंस करने, क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले हैं, दे आर कमिंग फॉर दैट, दे आर ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट, दे टेकिंग द सर्विस ऑफ ऑन थ्रू ऑनलाइन and they are enjoying the experience also. But what happens on the other hand, the next side of the coin, what is happening here? On the other hand, individuals with traits like extroversion, this word you have to write, extroversion, tend to trust reviews more easily which can lead to misplaced trust. लेकिन थोड़े लोग जो है सो एक्सट्रोवर्जन होके यहाँ पर जो है सो यकीन कर ले रहे रिव्यूज को, लेकिन कैन लीड टू मिसप्लेस ट्रस्ट. लेकिन फिर भी उनका भरोसा जो है सो टूट जा रहा है यहाँ पर. ऐसा बहुत सारे लोग, कुछ लोग ओपननेस आके पहचान लेके ऑर्डर करके फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ईजिली रिव्यूज ट्रस्ट कर ले रहे रिव्यूज के ऊपर. ठीक है, लोग अपनी साइकोलॉजिकल थिंकिंग को बिना डाले के जस्ट रिव्यूज को पढ़ के ऑर्डर कर दे रहे, लेकिन सप्लायर क्या हो रहा है, उन लोगों का मिसट्रस्ट कर दे रहे उसको. ऐसा भी हो रहा, दो भी चीजें हो रहे. जो अच्छा सोच के ऑर्डर कर रहे, किसी के साथ अच्छा हो रहा, लेकिन किसी के साथ बुरा भी हो रहा, जो क्रिटिकली नहीं थिंकिंग कर रहे. तो यहाँ पर अपने को क्रिटिकल थिंकिंग ओपननेस को बोल रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, एक्स्ट्रावर्जन अगर आप कर रहे हैं, अगर बिना मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड है एक्स्ट्रोवर्जन, इसमें क्या है, इजिली ट्रस्ट कर ले रहे अपन रिव्यूज के ऊपर, तो अपने को मिसप्लेस ट्रस्ट हो जा रहा अपना. Another significant finding is that many consumers, regardless of personality type, are generally better at identifying fake positive reviews. थोड़े पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता. ठीक है, यहाँ पर ओपननेस, ये क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं, लेकिन खाली जस्ट पहचान लेते थोड़े जने, वो भी कैटेगरी के कंज्यूमर्स के बारे में रिसर्च करे कि जनरली बेटर आइडेंटिफाइंग फेक पॉजिटिव रिव्यूज देन फेक नेगेटिव वंस. So these might be because negative reviews are often perceived as more truthful
नेगेटिव रिव्यूज कैसे हैं बोल रहे हो ना, ऑफन परसीव मोर ट्रूथफुल एंड इमोशनल रहते, विच मेक देम हार्डर टू क्वेश्चन. हाउएवर अजीमी पॉइंट्स आउट दैट नेगेटिव रिव्यूज कैन आल्सो बी फेक, वो भी फेक हो सकते हैं, रिटर्न बाय कॉम्पिटिटर्स. कौन लिखते हैं उसको, नेगेटिव रिव्यूज को, ये लिखना पॉइंट आप, नेगेटिव रिव्यूज को कौन लिखते हैं, इट मे बी रिटर्न बाय द कॉम्पिटिटर्स और डिसकर्नल इंडिविजुअल्स टू हार्म ए बिजनेस, और ऐसे लोग जो बिजनेस को हार्म करना चाह रहे, एंड कॉम्पिटिटर्स लिख सकते हैं. नाउ ब्रॉड इंप्लीमेंटेशन पावर ऑफ परसेप्शन. ह्यूमन परसेप्शन कैन बी बोथ ए स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अपना जो परसेप्शन रहता है ह्यूमन बींग्स का, अपनी ताकत भी बन जाता कभी कभी, अभी कभी अपनी कमजोरी भी बन जाता. बेस्ड अगर आप ये ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाना, ठीक है. वाइल सम ट्रेड्स लाइक ओपननेस एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, ओपननेस एनहांस की वजह से क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी सोच कर रहे लोग. अदर्स लाइक एक्स्ट्रोवर्जन, जो इजिली ट्रस्ट कर ले रहे, एक्स्ट्रोवर्जन बोले तो यहाँ पर इजिली ट्रस्ट करने को, माइट मेक इंडिविजुअल्स मोर ट्रस्टिंग एंड लेस स्केप्टिकल. दिस डुअल नेचर ऑफ परसेप्शन, ये जो परसेप्शन है अपना अच्छा बुरा, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है अपनी, अंडर स्कोर्स द नीड फॉर कंज्यूमर्स to be more cautious when making decision based on online reviews. तो ये परसेप्शन की वजह से अपने को यहाँ पर जो है सो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. Now next you have to write about human vulnerability. The study reveals that most personality types struggle to detect fake reviews. fake reviews को करने के लिए जो बहुत सारे लोग जो है सो स्टडी करते हैं, highlighting the vulnerability of human judgment. तो यहाँ पर अपने को human judgment के बारे में बताया गया. In the world of saturated with digital information, this inability to separate truth from deception, सच को झूठ से अपने को अलग करना है वहाँ पर, ठीक है. ट्रुथ फ्रॉम डिसेप्शन, धोखेबाजी से बचना है अपने को, सच्चाई को पकड़ना है, पहचानना है. इज ए सिग्निफिकेंट चैलेंज हो गया ये ह्यूमन बींग्स के लिए. इट एम्फेसाइज द नीड फॉर कंज्यूमर एजुकेशन. तो इसके लिए क्या बोल रहे हो नो, कंज्यूमर को एजुकेट करना जरूरी है. to help people develop their skill needed to critically evaluate the information they encounter. जो भी इंफॉर्मेशन उनके सामने है उसको क्रिटिकली कैसा इवेल्यूएट करना, उसके लिए जो है सो ह्यूमन क्या बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस अजीमी, शबनम अजीमी, शी इज सेइंग दैट कंज्यूमर एजुकेशन इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी फॉर द promoting online services, online product services you are providing into the market. Then what you have to do, you have to educate to the consumer so that they are able to how to evaluate based on the negative reviews and positive reviews and come to your get your service or product. That's a human vulnerability, we have to write it. Ethics and responsibility. Azimi's research also drawn attention to that ethical responsibility of online. ये अपनी ethical जो भी online के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनकी ethical basic responsibility है ये, ठीक है, कि वेबसाइट दैट होस्ट रिव्यूज को होस्ट करना वाला लोग सच एज Amazon, TripAdvisor हैव ए ड्यूटी टू इंश्योर दैट रिव्यूज आर ऑथेंटिक. तो यहाँ एथिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर एडवाइस दे रहे. अभी तक अपने को कंज्यूमर्स के बारे में बताए, अब यहाँ पर सेलर के बारे में, जैसे कि एग्जांपल बोल रहे हो नो, Amazon, ट्रिप एडवाइजर जो भी है ये लोग जो है सो कुछ वर्क करना बोल रहे हो नो, कुछ वर्क करके ये जो ऑथेंटिक रिव्यूज जो है वो ऑथेंटिक रिव्यूज रहना जैसा वो लोग प्रोवाइड करना लोगों को. दिस इंक्लूड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू डिटेक्ट, उन लोगों के पास कुछ ऐसा निकालना टेक्नोलॉजी के, वो लोग आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना कर सकना फेक रिव्यूज को रिमूव करने के लिए. फेयर प्रैक्टिस बेनिफिट बोथ, बिजनेस को भी ऐसा करने से क्या होता बोल रहे हो नो, बिजनेस को भी बेनिफिट होता, कंज्यूमर्स को भी, क्रिएटिंग मोर ट्रस्टवर्थी डिजिटल मार्केट प्लेस. ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एथिक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी you have to write it into the exam. Now what lessons for the consumer she is saying according to her, Azimi's work serves as a reminder that consumer must be vigilant. आप लोग बहुत होशियार रहना और क्रिटिकल रहना इन देयर अप्रोच ऑन ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन. ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिल रही तो ऐसी दीवानों के जैसा, इलिटरेट के जैसा आप बिलीव नको करो. अच्छे से जो है सो उसको विजिलेंटली, क्रिटिकली देखो. ब्लाइंडली ट्रस्टिंग रिव्यूज कैन लीड टू पुअर डिसीजन. अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेके कुछ शॉपिंग कर रहे तो आपका डिसीजन पुअर रहता, वेदर इज परचेजिंग ए प्रोडक्ट रहने दो या बुकिंग ए सर्विस रहने दो. ठीक है. By being more aware of how personality traits influence judgment, consumer can strive to balance trust with skepticism. So they should look at the patterns in reviews.
सच एज ओवरली इमोशनल लैंग्वेज, आप देखना उसमें पैटर्न, यहाँ पर अपने को कंज्यूमर्स को बता रहे हो, ठीक है, एजुकेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर साइकोलॉजी, अकॉर्डिंग टू द फेक रिव्यूज शी हैड स्टडीड नो। सो उनके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अपने को समझा रहे कि इमोशनल लैंग्वेज में लेंथी जो बैठ के आराम से किसी को धोखा देने के लिए वो करते ना, वो फेक रिव्यूज रहते, बोल रहे हो। इमोशनल लैंग्वेज जो यूज करते हैं, एक्सेसिव प्रेज, बहुत ज्यादा वो प्रोडक्ट की अगर हद से ज्यादा भी तारीफ कर दिए तो खत्म, समझ जाना अपन कि वो फेक है बोल के। और रिपीटेड फ्रेजेस आते किसी के, विच में इंडिकेट फॉल्सनेस। ये एडवाइस अपने को ये लेसन में उन्होंने दे रहे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, लेकिन ये ऐसा रहता बोल के बता रहे अपने को। The call for the ethical practices. The research also highlight the role business online platform ensuring fair practice करो बोल रहे हो। और बिजनेसमैन को भी बोल रहे कि आपके बिजनेस लोग आपके ऊपर जब भरोसा कर रहे, एक जने अगर परचेज कर रहे, देन इट विल मल्टीप्लाई बाय 100 and thousands also. Customers will come to you if you are providing the good product. So ethical practices for the जो provide कर रहे सर्विस, she is advising to them that you should follow ethical rules by providing the good quality of products and services to the consumers. Online platform giving you a number of opportunities that you can increase your business. If you are deceiving to the consumers, that means you are deceiving to your business only. Your business will flop in future. It won't be long run. It does not run in the long run. So she is advising ethical practices में यहाँ पर प्रोडक्ट को अच्छा प्रोवाइड करो, सर्विस को अच्छी प्रोवाइड करो बोल के एडवाइस दे रहे, ठीक है। यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करो सस्पिशियस एक्टिविटी। दिस वुड नॉट ओनली प्रोटेक्ट कंज्यूमर बट आल्सो एंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन अमॉन्ग बिजनेस में भी आपका फेयर कॉम्पिटिशन होता। Now at last in the conclusion, in today's digital age, navigating online marketplace requires a mix of critical thinking and caution. Shabana Azmi's research underscores the importance of understanding how personality trait influence our ability. अपनी ability की कैसा अपन करके यूज करके डिटेक्ट कर सकते, डिसेप्शन धोखे से बच सकते, एंड एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया उन्होंने प्लेटफॉर्म पे कि ट्रूथ रिव्यूज रहने से आपका बिजनेस कितना अच्छा बढ़ सकता है, आप अच्छा प्रोडक्ट जो है सो सर्विसेज दियो लोगों को। हर फाइंडिंग्स रिमाइंड अस द वाइल ऑनलाइन रिव्यूज कैन बी हेल्पफुल है, ऑनलाइन रिव्यूज अपने को हेल्पफुल भी हो सकते हैं इफ दे आर पॉजिटिव रिव्यूज। दे शुड नॉट बी ब्लाइंडली ट्रस्टेड, नहीं कर लेना अपन। इंस्टेड कंज्यूमर मस्ट अप्रोच देम विथ ए बैलेंस ऑफ ट्रस्ट एंड एक्सपेक्टिज्म, सो इंश्योरिंग देयर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन क्रेडिबल एंड रियलेबल इंफॉर्मेशन पे आपका डिसीजन डिपेंड रहता। ओवरआर्चिंग लेसन इज क्लियर एजुकेशन रहना, अवेयरनेस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस एसेंशियल। ये अपने को जो है सो अपने को बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहे हैं, एसेंशियल है ये, फोस्टरिंग ट्रस्ट इन द डिजिटल वर्ल्ड। Now lesson from the story, the central lesson of the research is educate. ये पूरा उन्होंने रिसर्च करके क्या समझाना चाह रहे, सेम ट्रस्टवर्दी रिव्यूज रहना, नेगेटिव वंस रहते कैन बी फेक, दिस यू कैन राइट इट बाय योर ओन। So all the best for your exam. Any one you have to write it. I will explain in the next video. Next additional reading you watch once all the three, then whichever you are finding it easy, that means in your own language which you can elaborate and write it, you select that one. Okay, all the best. And this is the this notes I am uploading on the Telegram channel. You watch it. You can, if you want the notes of this same copies, I am uploading on the Telegram channel Hikmat Learning Academy. You can watch from there. So all the best for your exam.